Students, finally here are the solutions of the worksheet given you to solve. So, question 1. In question 1, we have to calculate the number of atoms in each of the following. First, 52 moles of argon. We have to find how many atoms are there in 52 moles of argon and 52 U of helium and 52 grams of helium. So first part is 52 moles of argon contains how many atoms of helium. So as we know, 1 mole of argon equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of argon, and you know that 1 mole is equal to this number. So 1 mole of argon is equal to this much of atoms, and we have to find 52 moles of argon. So we'll multiply this number, which is known as Avogadro's number, with 52 and we'll get the answer, and our answer is this. तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर 1 मोल आर्गन में इतने एटम्स हैं तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन में कितने एटम्स होंगे. सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई the Avogadro's number with 52 and we will get the answer. So this was the first part of first question. Now let's take the second part of the question 1. In second part, we are given 52 U of helium. This is unified mass and it is for individual atoms, and we know one atom of helium is equal to 4 units of helium, 4 AMU, atomic mass units of helium, or we can say that 4 units of helium equal to 1 atom of helium, right? And if we have to find 1 U of helium, we have to divide it by 4, 1 upon 4 atoms of helium. So in order to find atoms in 52 U of helium, we will divide 52 by 4 and we'll get 13 atoms of helium. So from 52 U, we got 13 atoms of helium. Now let's take the third part. In third part, the question is 52 grams of helium contains how many atoms. So as we know that 4 grams of helium contains 1 mole of atoms. 4 gram of helium contains 1 mole of atoms of helium, and 52 grams of helium contains how many atoms? When we divide it by 4, we will get that, and that number is 7.8286 into 10 raised to the power 24 atoms. So 52 grams of helium contains 7.8286 into 10 raised to power 24 atoms of helium. Now let's see the question number 2. In question number 2, we have to calculate the mass percentage of different elements present in sodium sulfate. सोडियम सल्फेट के अंदर जितने भी एटम्स हैं, लाइक सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, इनकी हमें मास परसेंटेज फाइंड करनी है. सोडियम कितने परसेंट है, सल्फर कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है. दिस वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन.
So first, the molecular formula of sodium sulfate is Na2SO4, and molar mass of it we have to find. Here we have two atoms of sodium, one atom of sulfur, and four atoms of oxygen. So we have to put here atomic masses. So atomic mass of sodium is 23, atomic mass of sulfur is 32.066, and atomic mass of oxygen is 16. So when we put these values, we get the molar mass, that is 142.066 grams of this compound. Now we have to calculate the mass percentage of an element. मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है जिसमें मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, उस एलिमेंट का कंपाउंड में कितना मास है, ठीक है, और कंपाउंड का मोलर मास कितना है। अब मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, अब हमें पता है सोडियम जो है वो दो एटम्स हैं, सोडियम दो एटम्स मीन्स 2 into 23.0 इक्वल टू 46 ग्राम्स। तो सोडियम जो है वो 46 ग्राम्स है, और जो इसका मोलर मास है कंपाउंड का वो हमने निकाला है, दैट इज 142.66 ग्राम्स, 066 ग्राम्स। तो जब हम मास ऑफ सोडियम को डिवाइड करेंगे मोलर मास से तो वी विल गेट द आंसर। तो हमें आंसर यहाँ मिला 32.4% ऑफ सोडियम इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। नाउ वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द सल्फर। सल्फर का मास फाइंड करने के लिए हमें पता है कि सल्फर जो है उसका जो मास यहाँ पे है वो है 32.066 ग्राम, और मोलर मास कंपाउंड का है 142.066 ग्राम। जब इनको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 22.66%। दिस इज द आंसर। एंड फाइनली we have to find the mass percentage of oxygen। ऑक्सीजन का मास परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें ऑक्सीजन जो है हमें पता है 4 एटम्स ऑक्सीजन के हमने यूज किए हैं, तो उसका जो मास है वो है 64 ग्राम्स। तो 64 ग्राम्स और मोलर मास को हमने डिवाइड किया जब, तो हमें यहाँ मिल गया 45.05%। तो ये हमें मिल गई सभी की परसेंटेज। हम देखते हैं इसको पूरा। तो फाइनली वी गॉट हियर द मोलर मास दिस 42.066, और मास परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालना था। सोडियम का हमें मिल गया कितना 32.4%। सल्फर का हमारे पास आ गया कितना 22.6%, और फिर ऑक्सीजन का निकालना था, ऑक्सीजन आ गया 45.05%। तो ये हमारी परसेंटेज आ गई सारी, और अगर टोटल करेंगे इसको तो इट विल बी इक्वल टू 100%। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। Now the third question is, determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% of iron and 30.1% of dioxygen। हमें उसका empirical formula find करना है। तो given क्या है, यहाँ पे given है हमें कि परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास वो हमें गिवन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास वो भी हमें गिवन है।
तो अब हमें रिलेटिव मोल्स ऑफ आयरन फाइंड करने हैं। वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास जो हमें दी है 9.9% और एटॉमिक मास ऑफ आयरन जो है 55.85, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, रिलेटिव मोल्स ऑफ आयरन। ऐसे ही रिलेटिव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए हमें देखना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है 30.1 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है 16, तो यहाँ पे आएगा 1.88। ठीक है जी। तो अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ आयरन टू ऑक्सीजन जो आ गई हमारे पास वो ये आई, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो क्या आई 1.25:1.88। तो अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 1:1.5, लेकिन ये जो नंबर आ गया ये फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ गया हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन, मोल रेशियो जो आ गई वो आ गई 2:3। तो अब हमारा एम्पिरिकल फार्मूला जो आयरन ऑक्साइड का बना वो बना Fe2O3। दिस इज अवर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड जो हमें पूछा गया था। ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, क्वेश्चन देखते हैं फिर से। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला of iron oxide which has this much a percentage of iron and this much a percentage of dioxide। so हमारा फॉर्मूला आ गया Fe2O3, क्योंकि ये जो रेशो थी ये 2:2 क्या थी 1:2, 1:2 सॉरी जो रेशो आई वो हमारी आई 2:3। इसको करेक्ट करते हैं तो रेशियो हमारी जो एक्चुअल आई 2:3, तो उसके हिसाब से हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर, जिसमें हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन जो है वो ये है और गिवन मोलर मास जो है वो ये है, मोलर मास गिवन है। तो हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से। यहाँ भी हमें एम्पिरिकल फार्मूला जो आयरन ऑक्साइड का मिलेगा वो मिलेगा Fe2O3। तो फिर हमें जो मोलर मास दिया गया है, मोलर मास ऑफ आयरन ऑक्साइड वो है 15969 दिया गया है। तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना होगा और इन दोनों को डिवाइड करके देखना है, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, n की वैल्यू। तो उससे EF को मल्टीप्लाई करके हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। देखते हैं पहले मास परसेंटेज ऑफ आयरन सेम एज इन प्रीवियस क्वेश्चन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल गई। तो फिर हमें मिल गए नंबर ऑफ मोल्स कितने 1.25 यहाँ पे आयरन के और 1.88 किसके मिल गए, ऑक्सीजन के। ठीक है जी। और उनकी रेशो जो आई आयरन और ऑक्सीजन की वो आई 1.15, उसको फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2:3, तो ये रेशो आ गई थी। फिर हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया था आयरन ऑक्साइड का वो आ गया Fe2O3, ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। और एम्पिरिकल फार्मूला का जब हमने मास निकाला आयरन 2 हैं, 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन 3 एटम्स हैं, तो इसका मास जो आ गया 159.69 ग्राम्स। और अब हमने निकालना है वैल्यू n की। तो n की वैल्यू जो है n यहाँ पे आ रहा है कितना 159.69 और 159.7 इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही है क्या 1 के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो दोनों यहाँ पे
सेम रहेंगे क्योंकि n की वैल्यू 1 है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इनको फाइंड करना है हमें। तो साइंटिफिक नोटेशन में देखने से पहले हम पहले देखते हैं यहाँ पे कि कोई अगर वैल्यू हमें साइंटिफिक नोटेशन देखना है तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में देखना है हमें। ये डेसिमल देखना है 0.048 में, कहाँ से कहाँ ले जाना है। यहाँ से हमें ये डेसिमल शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो हमें जाना है किस साइड, लेफ्ट साइड जाना है, और वैल्यू जो है वो आएगी हमारी 4.8 इंटू 10⁻⁻³ क्योंकि यहाँ से हम इसको 1 2 3 टाइम जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू आएगी 4.8। ऐसे ही अगर कोई ये वैल्यू है 2 3 4 0 0 0, तो यहाँ से हमें डेसिमल लाना है, यहाँ पे डेसिमल लाना है, और कितनी राइट की ओर जाना है, 1 2 3 4 5 टाइम्स राइट की ओर जाना है। तो हमारा आंसर आएगा 2.34 इंटू 10⁵ ये आंसर आ गया इसका 5। ठीक है, ऐसे ही अगर वैल्यू लें 8008 लें, तो यहाँ पे हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है इस जगह पे, लेकिन 3 राइट को मूव करना है, तो 8.008, तो 10⁻³ आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है जी, और फाइनली 6.0012 इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन। तो इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स देखिए पहले, देखो फर्स्ट है टू डिटरमाइन वेयर द डेसिमल शुड बी प्लेस्ड, कहाँ पे डेसिमल हमें रखना है, पहले वो जगह हमें डिसाइड करनी है। ठीक है, फिर काउंट हाउ मेनी प्लेसेस फ्रॉम न्यू डेसिमल टू ओल्ड डेसिमल, न्यू डेसिमल से ओल्ड डेसिमल कितनी प्लेसेस हैं। अगर हम राइट को मूव करते हैं, राइट पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगा, अगर लेफ्ट को मूव करते हैं तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू थी 3780, फिर 000, फिर 0000000, ये वैल्यू थी। ठीक है जी, इसमें हमने देखना था कि इसकी पावर क्या आएगी, तो हमें डेसिमल जो चाहिए वो यहाँ इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे हमें डेसिमल चाहिए। तो कितना हमें राइट की ओर मूव करना है, वो हमने काउंट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट हमें राइट की ओर मूव करना है, तो 12 जंप्स टू राइट, तो हमारा आंसर आएगा 3.78 इंटू 10⁻²²। ऐसे ही अगर ये वैल्यू है 0.246, 6 जीरोज हैं और 64। अब यहाँ पे जो डेसिमल है वो हमने यहाँ पे लगाना है, शिफ्ट यहाँ पे लगाना है और यहाँ से यहाँ पे लाना है। ठीक है जी, तो कितने जो है हमें लेफ्ट को जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट जो है वो 7 जंप्स हैं लेफ्ट की ओर, 7 जंप्स, तो हमारा आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पे जब लेफ्ट की ओर जाते हैं एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो नेगेटिव होती है, राइट की ओर जाते हैं तो पावर जो है वो पॉजिटिव होती है। तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशंस के लिए। Now the question 6th, how many significant figures are present in the following? Significant figures हमने फाइंड करने हैं कि इसमें क्या है, लेकिन significant figure करने से पहले हम रूल्स देख लेते हैं, उनको रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फर्स्ट, all non-zeros digits and any zero contained between non-zero digits counts.
तो जैसे ये नॉन ज़ीरो है, 4 नॉन ज़ीरो, 2 नॉन ज़ीरो, इनके बीच के जो ज़ीरोज़ हैं ये भी काउंट होंगे। नॉन ज़ीरोज़ तो काउंट होंगे, उनके बीच के ज़ीरोज़ भी काउंट होंगे। लीडिंग ज़ीरोज़ डोंट काउंट। अब जैसे 3 4 है, इसके जो इधर वाले ज़ीरोज़ हैं ये काउंट नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 आएगा। ऐसे ही ट्रेलिंग ज़ीरो काउंट इफ़ देयर इज़ ए डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, ये लीडिंग ज़ीरोज़ ये तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं ये काउंट होंगे। किसी नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट है तो लीडिंग ज़ीरोज़ जो हैं वो काउंट नहीं होंगे, लेकिन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो हैं वो काउंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे ये जो 4 ज़ीरोज़ हैं ये काउंट नहीं किए हमने, तो लास्ट वाले 2 5 0 0 ये काउंट किया हमने, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मे और मे नॉट काउंट। अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसमें जो भी ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं वो काउंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 भी आ सकता है और अप टू 6 भी आ सकता है। तो ये कुछ रूल्स हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इसमें मैंने बताया जैसे आपको ये सेम है, दिस इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे, यहाँ पे 2, ठीक है। ऐसे 208, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें सीधा ही 5005, इसमें 4 आएंगे। अब इस केस में जो लास्ट केस है हमारा ये वाला, यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 जो है सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, या फिर 4 5 6 भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही इस केस में 500 वाले में देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो इसलिए इस ज़ीरो को हमने काउंट करना है। तो वैसे ही इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5, क्योंकि बीच वाले ज़ीरोज़ भी काउंट होंगे और डेसिमल भी है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब राउंडिंग ऑफ है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 7th क्वेश्चन में राउंड ऑफ करना है आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको पता है रूल्स, तो पता है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिंपल आ जाएगा 334.2, क्योंकि उसके पहले जो डिजिट है 2 के पहले वो क्या है, लेस देन 5 है। तो ऐसे लिखेंगे, अगर 34216, अगर पहले 6 को रिमूव करें तो 34.22 आएगा, और अब अगर 2 को रिमूव करें 34.2 ही आएगा, बिकॉज 2 इज लेस देन 5। तो ऐसे ही इस केस में भी सिंपली 10.4 ही आएगा। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे 3 फिगर्स देखनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.046 और फिर 0, क्योंकि ये 7 है, ये 9 का यहाँ पे इंक्रीमेंट लगेगी, ये 60 बन जाएगा। तो दिस वे। अब इसमें तो 2808 है, तो इसका बन जाएगा 281। लास्ट क्वेश्चन, if 10 volumes of dihydrogen gas react with 5 volumes of dioxygen gas, 10 volumes हैं, 10 volumes हैं dihydrogen, 10 volumes of dihydrogen gas react with 5 volumes, ये 10 volumes हैं, ये 5 volumes of dioxygen gas। तो how many volumes of water are produced, वाटर के कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे, मतलब 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस
जब रिएक्ट करती है 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस तो वाटर के कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे, वाटर के कितने वॉल्यूम H2O। तो ये सिंपली आप जब इसको बैलेंस भी करोगे तो ये आएगा 10। तो यहाँ से देखते हैं 2 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ डाईऑक्सीजन। जब 2 वॉल्यूम डाईहाइड्रोजन के एक वॉल्यूम के साथ, 2 वॉल्यूम एक के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो 2 वॉल्यूम वाटर का बन रहा है। तो ऐसे ही अगर 10 होंगे ये तो नेचुरली इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2 2, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो ये क्या आ जाएगा 10 volumes of dihydrogen reacts with 5 volumes of oxygen in order to give 10 volumes of water vapors. And that's all. Thank you.